सो हेलो एवरीवन, होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ आई हूँ एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये क्लास 12th का चैप्टर है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमें दिखता तो ऐसे कि बहुत ईजी सा है, हम कर लेंगे, बट नो, इट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए लेट्स गो विद दिस टॉपिक। ठीक है, तो लाइफ स्पैन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन दिस लाइफ स्पैन, मीनिंग ऑफ लाइफ स्पैन, दैट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ till the period from the death, and it should be natural, not like someone got accident or something else. So it's a natural period. We have 3 stages in this. We have birth, then puberty, then adulthood, and then the old age, and after that it's death. Okay, so if we see that it's a natural the period, it is a period from natural birth till the natural death of an organisms, and it means each and every organism survive for a certain period of time. हमें पता है कि हर कोई कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है. एवरीवन इज नॉट एग्जिस्टिंग, और they are not like what we say in Hindi, that is amar. Okay, so they are not immortal, we can say this. Okay, so all living beings have to die one day. This is the basic phenomenon which we also know as in our relations and all these things. But in science, if we see a scientific thing, then everyone, each and every organism surviving in this world has to die one day. It may be short, lifespan depends. It may be short or it may be as long as few thousand years. So lifespan of organisms are not necessarily related with the body size. If we see, let's take an example of a single-celled organism, amoeba. They just divide and live. So we can say they divide. They don't die, but they divide. So it can be the exception that it cannot be immortal. Okay, like we can coming to this topic, the size necessarily related to the body size. Over here, we see parrot and crow. They have same body size, but the lifespan has very huge amount of difference. As parrot live thousands of years and crow don't live. And if we take an example of a mango tree has much shorter lifespan as compared to the people tree. Okay, so these lifespans depends. And also learn these example, that is butterfly. Butterfly has lifespan of 1 to 2 weeks. Crow has 15 years. Then parrot has 140 years. Tortoise has 100 to 150 years. So all these examples are present in your NCERT, and I have provided you notes in a very simplified manner. It is basically the wordings of NCERT only, but in this I have like their points, or their in a form of notes, so which will help you to do a lot of work. Okay, so these chapter is a really a nice chapter. Let's go with the other topic. Okay, so reproduction. What is the meaning of reproduction if we see? Okay, so reproduction is a biological process. Okay, in this it is a biological process. Two organisms copulates to give a baby. Okay, so an organism give rise to young ones or offspring similar to itself. Young ones we say in the humans, and offsprings we say in the plants. Okay, so offspring grow, mature, and produce new offsprings. Okay, and here each and every organism that which I have told you, that is lifespan. Okay, one day each and every one organisms present in on earth have to die, and this is a cycle, that is birth, growth, that is childhood, then maturation, that is puberty age, then reproduction in the it is the age of adulthood. Then they give offspring also, and offspring go with the same birth, growth, maturation, and reproduction steps. And after the reproduction there is old age, that is the death.
And what is the basic idea of reproduction? Reproduction enables the continuity of species generation after generation, as they are giving offsprings and offspring. So they give continuity of species. Okay. Then come maintains life on Earth. Yes, life is maintained on Earth with the help of reproduction and the certain of variance in a population, like basically evolution. Evolution, like if we take an example of an elephant, they have very big teeth uh, several years ago, but now if we see they don't have the teeth. So that's the evolution, that is variations in the populations. Like our forefathers were a monkey, and now if we see we are humans. So these are the basic ideas or the variations which was done in millions of years. Okay. Then we comes to the type of reproductions. Okay, so type of reproductions are asexual reproduction and the sexual reproduction. Okay, in asexual reproduction, offspring is produced by a single parent without the involvement of gamete formation. In this, there is no copulation or nothing is required. In this, only a single offspring is produced. Okay, with the help of a single uh, parent without the formation of gamete. The gamete formation is not needed in the asexual reproduction. There is no gonads or sex organs required, no meiosis, no fertilization, no zygote, and no embryogenesis is required over here. Okay, students. So here the offspring that has the sorry, it's R. Okay, so make it R. Okay, you have to write the notes. Okay, guys. So the offsprings that are produced by single parents are identical, or we can say that when we see our parents, okay, in sexual reproduction I'm telling this, so you can compare it with sexual reproduction also. So in some parties or when you meet to relatives, then they may be telling you कि यार बच्चा तो एकदम आपके पेरेंट्स पे बेटा आप तो एकदम आपके पेरेंट्स पे गए हो. ओके, तो दैट थिंग इज प्रेजेंट ओवर देयर. सो हम थोड़े थोड़े मिलते हैं, लेकिन in this the offspring completely matches to the parent. It is the exact copy, like Xerox copy होती है ना, like that only. Okay, so the clone, what does the term clone mean now? Clone is the which is used to describe morphological and genetical similar individuals. Like we can take the example of pea plant. Okay, pea plant is there and the offspring of pea plant is there. Okay, so it is the clone or the exact copy which is genetically and morphologically similar to each other. Okay, so parents and offsprings are similar to each other. Then comes the sexual reproduction. Sexual reproduction is usually biparental, that is, two parents are required, that is, male and female. Sex organs are required, that is, female and male sex organs. Then come gametes. Gametes formation is required and meiosis occurs during the gamete formation. Okay, after that, fertilization occurs. After fertilization, formation of zygote, then embryogenesis, then formation of organisms and variations in offspring. So in today's topic, we will be discussing in this video the asexual reproduction and sexual reproduction. I will upload just in few days. Okay. So till then you have to stay updated. So let's start with the asexual reproduction. Okay. So asexual reproduction is a common single-celled organism. In this asexual reproduction, only the single-celled organisms are required, like Monera and Protista. Implants and animals with relative single organization. Okay, then comes cell division. Cell division इनका asexual reproduction का कैसे होता है? Cell division इनका अमाइटोसिस और माइटोसिस ही होता है. अमाइटोसिस क्या होता है? अमाइटोसिस होता है डायरेक्ट डिविजन. डायरेक्ट डिविजन हो जाता है मोनेरियंस में. एग्जाम्पल हम लेंगे साइनोबैक्टीरिया, देन माइकोप्लाज्म, दैट इज पीपी अलोन. ओके, देन कम्स द माइटोसिस. अमाइटोसिस हो गया. अमाइटोसिस डायरेक्ट डिविजन होता है, और माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. जैसे कि हम देख ले अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, यीस्ट, ये सारी चीज़ें यूकैरियोट्स में आएंगी. ओके, सो लेट्स गो अहेड.
ठीक है, मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत अलग अलग टाइप्स के मेथड्स होते हैं. तो फर्स्ट मेथड इज फिजन. फिजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. ठीक है, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, सो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. तो जैसे कि सेल डिविजन इसका खुद का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. इसका मतलब लाइक सेल डिविजन होगा ना, उसी को मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ठीक है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे अमीबा का. लाइक हियर यू कैन सी द डायग्राम. इट इज़ द पेरेंट अमीबा. देन द इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस अकर. लाइक आप देख सकते हैं कि पहले न्यूक्लियस ऐसा था, एकदम स्फेरिकल और राउंडेड, और ये अब इलोंगेट होना स्टार्ट हो गया है और साइटोप्लाज्म का भी बैरियर बन चुका है धीरे धीरे. अब ये देख सकते हैं न्यूक्लियस आर बीइंग सेपरेटेड एंड नाउ द साइटोप्लाज्म इज जस्ट getting over. Okay, and here we can see the two daughter cells of amoeba or amoebulae. Okay, now come the and for amoeba we can say that it can be divided in any plane क्योंकि amoeba खुद ही shapeless होता है, that's why. Okay, then come paramecium. ठीक है, paramecium में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है. लाइक यू आर कटिंग एन एप्पल लाइक दैट. ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन होता है ये. ट्रांसवर्स सेक्शन मीन्स इट इज़ अ कटिंग, हॉरिजॉन्टल कटिंग. ओके, सो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये माइक्रो न्यूक्लियस, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है इसके अंदर. ओके, नाउ ये देख सकते हैं यहाँ से ओरल रूवी, यहाँ से इनका खाना खाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनका माइक्रो न्यूक्लियस है और मैक्रो न्यूक्लियस है, ये दोनों इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. ये देखिए यहाँ पे ये दोनों इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे इनका डिवीजन हो जाएगा ट्रांसवर्स सेक्शन के थ्रू. और यहाँ पे टू डॉटर पैरामीशियम्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, इनको बोलेंगे टू डॉटर पैरामीशिया. लाइक अमीबा का अमीबुले होता है, तो इसका पैरामीशिया का पैरामीशिया. ओके, तो बाइनरी फिजन के अंदर हमने दो एग्जाम्पल्स देखे हैं अभी, अमीबा और पैरामीशियम. और थर्ड एग्जाम्पल है प्लेनेरिया. प्लेनेरिया में ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, जैसे कि पैरामीशियम में था ऐसे, इन दिस फॉर्म. ओके, सो इन दिस प्लेनेरिया इज मल्टीसेलुलर प्लेटफॉर्म दैट इज प्लेटीहेलमिंथेस. ओके, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप देख सकते हैं. जैसा कि पैरामीशियम में हुआ था, सेम इसमें भी होगा. इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिविजन. ये देखिए इसमें 3 पार्ट्स में हो गया. इसमें मतलब डिविजन 1 और मोर पार्ट में होगा. ये स्पेसिफिक नहीं कि 2 हाफ्स में होगा, 2 और 4 होगा. ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज यूग्लिना. यूग्लिना एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन है. इसका लॉन्गिट्यूडनल डिविजन होता है. लॉन्गिट्यूडनल इन दिस वे. ओके, इन दिस वे. तो आप देख सकते हैं इस वे में हो रहा है. तो इसका पहले एक साइड था ये एंटीना, और अब ये दूसरी साइड हो गया. अब ये देखिए यहाँ पे इनका धीरे धीरे डिवीजन स्टार्ट होता है और ये यहाँ से अलग हो जाते हैं. ठीक है, ये यहाँ से अलग हुआ है. अब इसका क्रोमोसोम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई, ये सब का डिवीजन स्टार्ट होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा. एंड इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू यूग्लिनास. ओके, डॉटर न्यूक्लिनास. फिर आते हैं हम मल्टीपल फिजन में. मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल होगा प्लाज्मोडियम और मलेरिया पैरासाइट. हमें मलेरिया कैसे होता है, हमें पैरासाइट काटता है, पैरासाइट हमें मस्कीटो काटता है. ओके, देन हम ब्लड के थ्रू उसका जो पैरासाइट होता है वो हमारे पैरासाइट और स्पोरोजोइड, स्पेसिफिकली वी शुड से स्पोरोजोइड. ठीक है, तो स्पोरोजोइड हमारी लिवर सेल्स में जाता है और लिवर सेल्स में जाके खुद की ग्रोथ बढ़ाता है. लाइक ये तो लिवर सेल का न्यूक्लियस था और ये हो गया पैरासाइट का न्यूक्लियस. तो मतलब जैसे नहीं, सॉरी, यहाँ पे होगा लिवर सेल्स का न्यूक्लियस. लाइक लिवर सेल का न्यूक्लियस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लिवर सेल का न्यूक्लियस ये साइड में कर देता है और ये खुद का स्पोरोजोइड खुद का न्यूक्लियस डेवलप कर लेता है. इसके अंदर फिर होता है मल्टीपल फिजन. ये डिवाइड करे जाता है, डिवाइड करे जाता है, डिवाइड करे जाता है. 1000 to 1500 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन द सिंगल लिवर सेल, सिंगल लिवर सेल्स के अंदर. और फिर ये एकदम से आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ
1000 to 1500 nucleus of parasite in liver cells, then it get ruptures, and after getting rupture, these sporocytes then they go to the other liver cells and this process goes on. ठीक है, तो ये मल्टीपल फिजन का अच्छा एग्जाम्पल है. Now this is the ancested condition of the amoeba. Here in amoeba, what happens during the ancested conditions, or we can say during the stressed condition, what happens is it forms the three layers around it. Okay, amoeba forms the three layers around it: ancested layer, obsessed layer, and here the form in order it forms the 500 to 600 nuclei is in it. And after the formation of nuclei, here you can see like this is the amoeba, here is the first, here is second, and here is the third ancestor layer. Okay, after that there is formation of 500 to 600 nucleus, और ये एकदम से रप्चर हो जाता है. ठीक है, ये एकदम से रप्चर हो जाता है. इसकी सिस्ट होती है, दैट इज 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल. तो इसकी सिस्ट एकदम रप्चर हो जाती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 500 to 600 एमिबुले, और ये एमिबुले इसको रिलीज कर देती है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन के 3 स्टेप्स हैं, इनको आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो ये बहुत इजी टॉपिक हो जाएगा आप लोगों के लिए. बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो चलिए इसके साथ चलते हैं. ये स्पेशली सबसे ज़्यादा एंसेस्टेड कंडीशन भी नहीं, ये मतलब सबसे ज़्यादा होता है अनफेवरेबल कंडीशंस, लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड डेसिकेशंस. Okay, it is so it occurs during that time. Here you can see the diagram. Here you can see, I think you can see. Okay, so this is the amoeba. Okay, here unfavorable environment occurs, that is increasing in temperature or decreasing in temperature, changes in temperature, and desiccations. Okay, so here what happens, it forms, amoeba becomes spherical in shape. First of all, after becoming spherical, it forms 200 nuclei, approx 200 nuclei, and after the formation of 200 nuclei, it forms amebulae. Okay, after that what happened, parent wall spore covering occurs. After the covering of the spore, ठीक है, ये रिलीज हो जाते हैं, ये रप्चर हो जाते हैं. ठीक है, सो ये रप्चर हो जाते हैं. अब एक बार हम इनके सारे पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं. ओके, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फिजन बिकम इंडिविजुअली सराउंडेड बाय रेसिस्टेंट कोट, हियर यू कैन सी, ये यहाँ पे जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद अमीबेले का, और फिर ये रेसिस्टेंट कोट से एक बार कवर्ड हो जाती है. और जो सिस्ट वॉल होती है बिफोर रिलीज फ्रॉम द पेरेंट, इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन. ठीक है, और जो एंसेस्टेड प्रोडक्ट या फिर जो कवर्ड प्रोडक्ट है उसको हम बोलेंगे स्पोर्स. ठीक है, स्पोर्स एक्टिव रहते हैं कब, अनफेवरेबल कंडीशंस में, जैसे कि मैंने बताया आपको, चेंजेस इन टेम्परेचर और एक्सट्रीम इन टेम्परेचर एंड डेसिकेशन. ठीक है, और जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं तो सिस्ट हैच कर जाती है, लाइक ये इसके अंदर फॉर्म करती है. अब आप ये बोलोगे सिस्ट हैच कब करती है, तो सिस्ट 500 to 600 न्यूक्लियस तो हो ही जाते हैं तब तो रप्चर करती है. लेकिन जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है तब ही रप्चर करती है, क्योंकि स्पोरुलेशन सिर्फ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, हमें इसमें दिख रहा है, ये खुद का सर्वाइवल भी देख रहा है इसमें ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. और ये डिस्पोज हो जाता है अलग अलग लोकेशंस में विद द हेल्प ऑफ एयर. ओके, जब ये डेसिकेट होता है, ओके, जब ये रप्चर होता है, देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बडिंग. ओके गाइस, दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज बडिंग. इसमें बॉडी बल्जेस आउट. है यू कैन सी, देखिए बॉडी बल्ज हो चुकी है, इसकी बॉडी पूरी तरह से बल्ज हो चुकी है. ठीक है, ये बॉडी बल्ज हो चुकी है. ठीक है, और अब इसकी ग्रोथ हो रही है बर्ड की. ठीक है, इस बल्जिंग बॉडी को तो बोलेंगे बर्ड, और इसको बोलेंगे ग्रोथ ऑफ बॉडी. अब ये धीरे धीरे
और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी और ये डिटैच हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट हाइड्रा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने हाइड्रा लिया है, ठीक है। अब यीस्ट का एग्जाम्पल है, ये देखिए यीस्ट में पेरेंटल यीस्ट सेल है, इसके अंदर हल्की सी बर्डिंग आई, इसकी ग्रोथ हुई, न्यूक्लियस डिवाइड हुए, साइटोप्लाज्म में डिवाइड हुआ और ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट, ठीक है। ये टॉपिक हो गया हमारा बर्ड का, ओके। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर का एक एग्जांपल हम लेंगे क्लैमाइडोमोनास। ये सिंगल सेल्ड ग्रीन मोटाइल एल्गी होती है। ये देखिए इसका डिवीजन भी है इसमें, ये फ्लैजिलास है इसकी, ठीक है। और अब ये इसका डिवीजन हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल, फिर ये ट्रांसफर्स हुआ और इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ मेनी ज़ूस्पोर्स हुआ और इसकी सेल रप्चर करेगी और फॉर्मेशन ऑफ मेनी ज़ूस्पोर्स, ओके। क्लैमाइडोमोनास इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ज़ूस्पोर्स, ठीक है। अब इसके अंदर ही यूलैप्ट्रिक्स भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ज़ूस्पोर्स का। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस, अनब्रांच्ड और ग्रीन एल्गे है ये, ठीक है। ईच ज़ूस्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म अ फिलामेंट ऑफ यूलैप्ट्रिक्स, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये ऐसे फॉर्मेशन होता है, अब जैसे जैसे ये ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे ये रप्चर होता जाएगा, formation of the cell and then this ruptures, okay. Then latrix भी हो गया, then comes the conodia. कोनोडिया एक टाइनी स्पेरिकल स्पोर्स होते हैं, ये देखिए ऊपर जो प्रेजेंट है ये टाइनी स्पेरिकल स्पोर्स होते हैं। ये पेनिसिलियम है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये पेनिसिलियम है, इसके ऊपर कोनोडिया होते हैं, ठीक है। कोनोडिया इज अ spores, okay, they germinate to form hyphae, okay guys. Then come gemule. Gemule क्या होता है, ये स्पॉन्जी होता है बहुत ज़्यादा, एंडोजीनियस बडिंग होती है इसके अंदर। हमने देखा बाकी सब में बडिंग बाहर की तरफ हो रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बडिंग अंदर होगी, है ना। स्पॉन्जी स्यूल में लाइक साइटोप्लाज्म होता है हमारा, cell means cyto and plasm means inside the cytoplasm the fluid present, okay. ऐसे ही ये स्पॉन्जेस में होता है और इसके अंदर स्पॉन्जी सोइल दैट इज फ्लूइड प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस, ओके। फिर आर्कियोसाइट्स, इसमें हमने देखा है ये सेल्स हैं, कुछ सेल्स हैं जिनका नाम है आर्कियोसाइट्स। तो आर्कियोसाइट्स कौन सी होती है, टोटिपोटेंट सेल होती है, ठीक है, स्पॉन्जेस की। ये सेल एंटायर बॉडी फॉर्म करती है स्पॉन्जेस की, ठीक है। टोटिपोटेंट मीन्स द मेरिस्टेमेटिक, okay. Then come the gamma cup. What happens in gamma cup is each gamma forms a new plant, ठीक है। each gamma cup forms a new plant. It is a multicellular structure, okay. ये एक multicellular structure होता है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए multicellular कितनी सारी सेल्स, ऑयल सेल, नॉन स्टॉक, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं और gamma cup डेवलप ऑन अपर डॉर्सल सरफेस, देख सकते हैं आप, ये अपर डॉर्सल सरफेस पे डेवलप हो रहा है गैमा कप, ठीक है। सो फिर आते हैं स्पोर्स एक टाइनी स्पोर्स हैं जो एंडोजीनियस प्रोड्यूस होते हैं। ये देखिए गैम्यूल में भी एंडोजीनियस बडिंग है और इसमें एंडोजीनियस प्रोडक्शन ऑफ स्पोरेंजियम है, ठीक है। इसमें हाइपे का फॉर्मेशन होता है, हाइपे मीन्स दिस बल्जिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और उसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये एकदम से रप्चर हो जाता है और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोबियम और राइजोपस एंड म्यूकर, ओके। नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसी टर्म है जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है। जैसे हम देखें किडनी का सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, ओके। और हम देखें लिवर की बेसिक यूनिट क्या है, हेपाटिक, ठीक है। ऐसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बेसिक यूनिट जो है वो है प्रोपोग्यूल, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के
और रिप्रोडक्शन के, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे लीफ टिप, इसका एग्जाम्पल है अडेंटम, कॉडेंटम और वॉकिंग फॉर्म। गाइस इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद करना क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं एग्जाम्स के अंदर, ओके। अब क्या करती है ये लीव्स, जैसे ये लीव्स है ना, ये लीव्स है, मान लो ये स्टॉक है और इसमें बहुत सारी लीव्स ही लीव्स हैं, ओके। अब ये इन दे गोस and bows down into the soil, okay. Here is the under the ground, okay. Here is the soil, they are buried inside the soil and bird develop a new fawn, okay. So this thing happens, is develop a new fawn, okay. Then come underground stems. What are underground stems? Rhizomes. We can take best example of ginger, turmeric, lotus, ferns. जिंजर, जिंजर तो भाई सर्दियों की एकदम खतरनाक चीज़ होती है जिंजर, मतलब अदरक। और अदरक इतनी ज़्यादा, चाय पीती हो, चाय अदरक वाली चाय, हाय हाय। आप, मुझे पता है आप ज़रूर बोर हो गए, थोड़ा बहुत मजाक तो चलता है यार। टर्मरिक, अगर आपने असली हल्दी देखी हो तो वो अदरक की जैसी होती है बहुत बार दिखने में। लोटस तो सब जानते हैं भाई, हमारे नेशनल फ्लावर है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, देख सकते हैं आप। इसकी स्केली लीव्स होती हैं, है ना, और वेल मार्क एपिकल एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, ये देख रहे हैं, ये इसकी एक्सिलरी बर्ड्स हैं, ओके। सो हियर वी गो विद द नेक्स्ट टॉपिक। राइज हो गया। अब आया कॉम। अब कॉम क्या है? कॉम वर्टिकली ग्रो होता है, जैसे कि हमने देखा वो हॉरिजॉन्टली ग्रो होता था, अब ये वर्टिकली ग्रो हो रहा है। ये देखिए इंटरनोड्स की तरफ से ये स्केली लीव्स आ रही हैं, और ये स्केली लीव्स क्या, ये तो प्रोडक्शन है, ये देख सकते हैं आप, ये वाला एग्जाम्पल। ये देखिए ये वर्टिकल अपवर्ड हो रही है नोड्स, स्केली लीव, है ना। इसका एग्जाम्पल है अमार्फोफेलिस, कोलेकस, डायोस्कोरिया, क्रोकस, ग्लैडियस एंड कोलेकियम, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बल्ब। बल्ब का बेस्ट एग्जाम्पल है अनियन और गार्लिक। अनियन प्याज, गार्लिक मीन्स व्हाट वी से लहसुन, जिसके बिना हमारा खाना नहीं बन सकता इंडियंस का, है ना। सो एलियम सेपा, एलियम सेपा मीन्स अनियन, ओके। एलियम सेपा इज द साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो ये अनियन होता है। बल्ब भी दो तरह के होते हैं, दैट इज स्केली, सॉरी गाइस फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स, बट आप समझ जाओ, वीडियो देख रहे हो ना तो आप कर लेना। स्केली एंड इम्ब्रिकेट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्केली होती है और इम्ब्रिकेट होते हैं, दैट इज डिविजन फ्री, लाइक डिवाइडिंग, ओके। देन ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेट मेम्ब्रेनियस स्केल लीव्स होती है, देखिए ये स्केली लीव्स हैं इसकी, ठीक है। स्केली लीव्स होती हैं, लाइक ये अनियन का पार्ट ले लिया हमने। ये बर्ड्स देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे आप अनियन कट करेंगे ना ऐसे, ट्रांसफर सेक्शन इसका, तो आपको ये बर्ड्स हल्के हल्के दिखेंगे, ठीक है। और ये देखिए एक यंग फ्लावर का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये देखिए ये स्केली लीव्स, आपने देखा होगा ना लाइनिंग लाइनिंग होती है प्याज के अंदर, अभी कभी काट के देखना तो उसके अंदर पता चलेगा, ठीक है। तो जो स्केली लीव्स होती हैं हमें उनको बोलते हैं ट्यूनिका, और ये इम्ब्रिकेट बल्ब्स में एब्सेंट होती हैं, ठीक है, दैट इज स्केली बल्ब्स, उसके अंदर ये एब्सेंट होती हैं, ठीक है, स्केली लीव्स, ओके। तो इम्ब्रिकेट बल्ब का एग्जाम्पल हो जाएगा गार्लिक, ठीक है। गार्लिक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, ठीक है। और जो इम्ब्रिकेट बल्ब्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी लीव्स होती हैं, लाइक ऐसा मुंह में रस आ जाता है, लेकिन हमें नहीं आता प्याज को देख, लाइक फ्लैशी, समझ जाओ यार, एकदम फ्लैशी सी, गुलगुली सी ऐसी होती हैं, ठीक है। फिर आता है ट्यूबर। ट्यूबर बेसिकली, ट्यूबर का नाम आते ही सबसे पहले पोटैटो याद आता है, तो ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो याद कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा पोटैटो जी, जिससे हम फ्रेंच फ्राइज भी बनाते हैं और बहुत सारी टेस्टी चीज़ें बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ाई की तरफ आते हैं। तो ट्यूबर कोलैपस स्ट्रक्चर होता है स्टोरेज ऑफ फूड की चक्कर में।
आपने तो सुना ही होगा कि इसके अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है, क्योंकि ये स्टार्च स्टोर करता है, ये स्टोर करता है ग्लोब स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, इस फूड को स्टोर करता है बहुत ज़्यादा। बर्ड्स हैं, इनको ही आइस बोलते हैं, जो इसके ऊपर प्रेजेंट हो जाती हैं। अगर आप जैसे पटैटो है, आपने पटैटो खरीदा और आपने इसको बहुत दिन तक ऐसे ही रख दिया, तो उसके ऊपर मतलब ऐसे लाइक हल्का हल्का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा बर्ड्स का, जो आप देख सकते हो। अभी इसमें नहीं, रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम सब एरियल स्टेम्स पे। ओके, सब एरियल स्टेम्स पे आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है रनर, ठीक है, ऑक्सैलिस एंड साइनोडल, दैट इज डूब ग्रास, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर लाइक रनिंग ऑन द सरफेस, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर रनिंग कर रहा है, ठीक है। और फिर हम देखें रनर का एग्जाम्पल ये है डूब ग्रास, ये देख सकते हो आप, इसकी स्केली लीव या रनर रनिंग ऑन द सेम सरफेस, लाइक ये कनेक्टेड होती है, इनकी रूट्स ना कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, ठीक है। देन कम स्टॉलन, स्टॉलन का मिंथा पेपरेटा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरीज एंड मिंट, ऑल दीज कम इन दिस स्टोलोन। स्टोलोन इज अनदर टॉपिक, रनर अलग था, स्टोलोन अलग है, ठीक है। तो इसके अंदर स्टोलोन है और गाइस यस, हाँ इसमें स्टोलोन है। देन कम्स द सकर, सकर इज व्हाट इज द सकर, ये है पिमेंथम क्राइसीमेंथम, ये देखिए ये सकर, ये एडवेंटिशियस रूट का जो फॉर्मेशन होता है ना, इसी को बोलते हैं सकर। सकर का बेस्ट एग्जाम्पल है मिंट, जो हम गर्मियों में मतलब सलाद खाया ही नहीं जा सकता मिंट के बिना, तो मतलब मिंट होना बहुत ज़रूरी है। मिंट मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मिंट को क्या कहते हैं। मिंट का अब मैं आपसे अगर वो पूछती साइंटिफिक नेम तो आप तो बता देते इसमें से, देखिए मिंट था, लेकिन अब बताइए मिंट होता क्या है। वैसे मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोगों को सबको पता है मिंट क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स गो विद द व्हाट वाज वी स्टडीइंग हियर, सकर, ठीक है। वी कम्स विद द टॉपिक सकर। तो सकर के अंदर क्या होता है कि ये सब एरियल होता है और इसका एग्जाम्पल क्रिजेमेंथियम है। लाइक आप देख सकते हैं इसकी ब्रांचेस में से रूट आ रही है, किसके अंदर, अंडर मतलब लाइक अंडरग्राउंड, इसके नीचे रूट्स आती हैं लाइक, और प्लांट ऊपर होते हैं और रूट्स अंदर आती हैं, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल हो गए गुलाटी का, गुलाटाउटी, ठीक है, क्रिजेमेंथियम। मिंट का एग्जाम्पल ये देखिए, मिंट के भी रूट्स के अंदर डेवलपमेंट होता है बर्ड्स का, और फिर ये लीव्स बाहर निकल जाती हैं, ओके। देन कम ऑफसेट, इकॉर्निया एंड पिस्टिया, ठीक है, इकॉर्निया एंड पिस्टिया। इकॉर्निया इज टेरर ऑफ बंगाल। इकॉर्निया अगर हम देखें तो इट इज़ वाटर हाइसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक वीड है, वीड यानी अनवांटेड प्लांट, ठीक है, विच वॉज ग्रोइंग इन स्टैंडिंग वाटर लाइक पॉन्ड्स, और ये जहाँ स्टैंडिंग वाटर मतलब जहाँ पे वाटर स्टिल रहता है, लाइक पॉन्ड्स वगैरह, रिवर्स के अंदर ये नहीं डेवलप होता, ये स्टैंडिंग वाटर में ये अनवांटेड प्लांट ग्रो होता है। ये क्या करता है, ये जितना भी ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है ये वो ले लेता है, और डेथ ऑफ फिशेस। फिश क्यों? क्योंकि फिश तो पानी के अंदर ही सांस लेंगी ना, तो उसके पानी के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, वाटर हाइसन टेक दैट अमाउंट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सो द what fish will take, so fish dies in that, okay. So it drains oxygen from water, which leads to death of the fishes, okay. I am telling about Ecornia, that is water hyacinth, and also the terror of Bengal. Why it was known as terror of Bengal? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो फिर लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि it was called as terror of Bengal because it was introduced in India. ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, क्यों?
क्योंकि इसका जो फ्लावर का शेप था, डिज़ाइन था, लीव्स का शेप था, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ठीक है गाइस, आई मीन स्टूडेंट्स, ओके। तो इसमें प्लांट प्रोपेगेट वेजिटेटिवली, मतलब लाइक इसके अंदर ये जो प्लांट था ना वो बहुत ज़्यादा वेजिटेटिवली, मतलब बहुत फास्ट रेट से ग्रो कर रहा था, और ज़्यादातर सारी वाटर बॉडीज़ के अंदर ही फैल चुका था बहुत ही कम टाइम में। तो ये एक तरह से टेरर ऑफ बंगाल हो गया था, क्योंकि वहाँ पे फिशेस की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हो गई थी एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, अब साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट्स, मतलब लाइक हम अगर देखें साइट ऑफ प्लांट्स की, तो प्लांट्स ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, नोड्स एंड इंटर नोड्स। जब वो नोड्स के कांटेक्ट में आती हैं डैम्प सॉइल या वाटर के थ्रू, तो वो नोड्स और शॉर्ट्स प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब प्लांटलेट्स कहाँ से राइज होती हैं, प्लांटलेट्स राइज फ्रॉम प्लांट which are present in nodes. Okay, so next comes with the topic लीफ बर्ड्स। देखा, बोला था ना मैंने कि ये प्लांटलेट्स है, लीफ बर्ड लीफ के नोड से। ये देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है, लीफ बर्ड में ये नॉच पे प्रेजेंट होती है, नॉच इज दिस थिंग। ठीक है, और ये लीफ का मार्जिन है। ठीक है, मतलब ये जो आउटलाइनिंग है इसके ऊपर लीव्स प्रेजेंट होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे हम ब्रायोफिलम। ये इमेज जो मैंने दिखाई है ये ब्रायोफिलम की। ओके, ये एक एडवेंटिशियस बर्ड है। ठीक है, ये डेवलप इन नॉच एट द मार्जिन ऑफ लीव्स, लीव्स के मार्जिन पे ये डेवलप होता है। ठीक है, देन कम्स बल्बिल्स। ये एक एक्सिलरी बर्ड है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इसका एग्जाम्पल अभी ग्लोबा एंड डिस्कोरिया है। ओके, अब हम आते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो अभी तक हमने पढ़े थे वो सारे नेचुरल थे, अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट है बाय कटिंग। बाय कटिंग मतलब लाइक प्लांट्स को कट करके और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग। स्टेम कटिंग का एग्जाम्पल होगा रोज, शुगर केन, चाइना। आपने देखा रोज फ्लावर, कोई कोई क्या करता है, प्लांट लाइक रोज फ्लावर लेता है और उसको कट कर लेता है, और वो लोग मतलब कुछ लाइक दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक रोज प्लांट देखा तो उन्होंने वो रोज प्लांट तोड़ लिया। ठीक है, क्या कहीं से भी तोड़ा, कोई से भी गार्डन में से तोड़ा, उन्होंने सोचा कि यार नहीं हम भी घर पे लगाएंगे। ठीक है, अब उन्होंने तोड़ा, तब एक फ्रेंड ने क्या करा, उसको जो कट करा ना उसकी ब्रांचेस, तो उसकी ब्रांचेस उसने एकदम स्ट्रेट कट कर दी। लाइक ये इसकी ब्रांच है एकदम स्ट्रेट, है ना। फ्रेंड ए ने तो ये करा, अब फ्रेंड बी था उसने इसको ऑब्लिकली कट करा। ठीक है, ऑब्लिकली मीन्स इन दिस वे। ठीक है, स्लांटली वे। तो उन दोनों ने इसको जाके मिट्टी में लगा दिया। स्टेम कटिंग, इसकी स्टेम कट करी और लगा दी। ठीक है, अब है ना इसके अंदर तो रूट्स ग्रो नहीं कर रही, लेकिन इसमें रूट्स ग्रो कर गए। क्यों? क्योंकि ये स्लांटली वे था नहीं था। ठीक है, ये टॉपिक हम आगे वाले चैप्टर्स में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक, अभी आप ये रिमेंबर करिए, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जब हम इसको ऑब्लिकली कट करते हैं और हम उस स्टेम को कट करके सीधा ग्रो कर देते हैं। ठीक है, सॉइल में रख देते हैं और ये ग्रो हो जाता है। रूट कटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है लेमन एंड टैमरिंड। टैमरिंड जानते हो, खट्टी मीठी इमली। ओके, सो इनकी जो कटिंग्स होती है वर्टिकली, देखिए ये ऑब्लिकली मैंने समझाया ना, ऑब्लिक दिस इनटू मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट सॉइल होता है, उसके अंदर इसको गाड़ दिया जाता है। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट डेवलप, इसके अंदर कौन सी रूट्स डेवलपमेंट होता है, एडवेंटिशियस रूट बेस के अंदर। ठीक है, और ये एडवेंटिशियस रूट्स किस में ग्रो हो जाती हैं, प्लांट के अंदर। ठीक है, अब आर्टिफिशियल का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे हम, लेयरिंग। व्हाट इज़ लेयरिंग? इसके अंदर लाइक ये प्लांट है, ये खुद ही इसकी ब्रांचिंग हो जाएगी, इसकी कोई एक ब्रांच आएगी और ये ऐसे हो जाएगी। अब इसके ऊपर ना बहुत सारे
सॉइल आ जाएगा, रॉक्स आ जाएंगे, ब्रिक आ जाएगी, स्टोन आ जाएगी, ताकि ये तो इसके अंदर बरेड हो गई, ठीक है। फिर रूट जब ये इसके अंदर डेवलप हो गई तो ये जो प्लांट जो अंदर रह गया वो क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, उसकी रूट्स फॉर्मेशन होगा, उसका रूट फॉर्मेशन हुआ तो फिर ब्रांच कट हो जाती है अपने आप, खुद ब खुद ब्रांच कट हो जाती है और मदर प्लांट सेपरेट फ्रॉम द बेबी प्लांट, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैस्मिन। और जैस्मिन में से क्या खुशबू आती है, ओ माय गॉड, इट्स इट्स अनएक्सप्रेसिबल, ओके। फिर आएगा दिस गोट और एयर लेयरिंग। अब एयर लेयरिंग में क्या होता है, एयर लेयरिंग में एक हम बहुत हेल्दी सी वुडी सी ब्रांच लेते हैं, ठीक है। रिंग ब्रांच स्लाइस्ड ऑफ, एक बार्क लेते हैं, इसको रिंग शेप में कट कर देते हैं, लाइक उसकी टहनी होती है ना, उसको हम कट कर देते हैं रिंग शेप में। ये देखिए 2.5 to 5 सेंटीमीटर पार्ट्स ऑफ ब्रांच, ठीक है, इतना पार्ट हम कट कर देते हैं और दूसरे प्लांट का इसके अंदर हम लगा देते हैं, ठीक है, ब्रांच लगा देते हैं 2.5 से 5 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। अब ये जो रिंग्ड पोजीशन है इसको स्ट्रॉ की हेल्प से या विक्स की हेल्प से इसको हम बांध देते हैं, ठीक है, क्ले लगा के। फिर हम इसको पानी से भिगोते रहते हैं इवनिंग एंड आफ्टरनून, ओके। तो फिर यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट होगा, ये देखिए इसका फॉर्मेशन होगा। और इसका मोस्टली एग्जांपल्स हैं लीची, लेमन, गवावा एंड ऑरेंज, ठीक है। ये एग्जांपल्स लर्न करना, मार्क माई वर्ड्स, यू हैव टू लर्न दिस एग्जांपल्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, मोस्टली एग्जांपल्स ही आएंगे इस चैप्टर में से। देन कम ग्राफ्टिंग। अब आप सोचोगे ग्राफ्टिंग क्या है यार, ग्राफ्टिंग छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे, नहीं। ग्राफ्टिंग छोटा टॉपिक है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये एग्ज़ाम में 4 to 5 मार्क्स से कम नहीं आएगा। ग्राफ्टिंग की डेफिनेशन ज़रूर आ सकती है कम मार्क्स में, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो कम ओवर हियर, ठीक है। ग्राफ्टिंग के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एक तो सायन एंड एक स्टॉक, ठीक है। तो जो सायन होता है ये ग्राफ्ट होती है, ये एक पार्ट होता है सिलेक्टेड प्लांट का, मतलब इसको लाइक ये एक अच्छा मैंगो है तो हमने इसको सेलेक्ट करा, ठीक है। तो ये जो सेलेक्टेड पार्ट होता है ना प्लांट का, ये वो है। और ग्राफ्टेड ऑन रूट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। अब इसको हम स्टिक कर देंगे दूसरे प्लांट के साथ, लाइक हम एक प्लांट लेंगे, ये देखिए, ये नहीं, लाइक हमने एक प्लांट लिया, ये प्लांट लिया, ठीक है। अब हमने इसको ऑब्लिकली कट किया और यहाँ पे जो कटेड प्लांट था दूसरा प्लांट वो यहाँ से अटैच कर दिया और ग्राफ्टिंग कर दी, ठीक है, इस जगह पर, है ना। तो ये चीज़ होती है इसमें, है ना। तो स्टॉक जो है रूटेड प्लांट ऑन विच साइकॉन इज ग्राफ्टेड, ठीक है, और ग्राफ्ट कैन बी ब्रांच्ड और बड, ठीक है। तो सायन तो एक प्लांट है, लाइक ये वाला पार्ट जो है दूसरे प्लांट का वो सायन है, और स्टॉक मतलब जो रूटेड है, जो प्लांट रूटेड है जिसकी रूट्स हैं वो, ओके। अब ग्राफ्टिंग के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, स्पेसिफिकली 5 मेथड्स हैं। तो इसके अंदर होती है एक अप्रोच ग्राफ्टिंग, इसमें पेरिफेरल टिश्यूज ऑफ बोथ साइकॉन एंड स्टॉक एसोसिएटेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये देखिए अप्रोच ग्राफ्ट, इसकी ब्रांच और इसकी ब्रांच दोनों एसोसिएटेड रहती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के टाइम। ये देखिए ये रूट स्टॉक है और ये साइकॉन है, रूट स्टॉक, और फिर हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और ये साइकॉन हो गया, ठीक है। फिर आएगा बड ग्राफ्टिंग, इट इज़ अ सेलेक्टिव बड और साइकॉन inserted in T-shaped icon for wrapped cord, like कोई मैंगो ट्री है। अब एक मैंगो ट्री तो दे रहा है बहुत मीठे मीठे मैंगोज,
और एक मैंगो ट्री दे रहा है बहुत बड़े बड़े मैंगोज। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, ये जो बड़े वाले मैंगोज है ना, इसका टी शेप्ड कट करेंगे लाइक दिस, ठीक है, इसको कट करेंगे टी शेप में, ठीक है। और हम यहाँ पे ग्राफ्ट कर देंगे वो मैंगो ट्री की ब्रांचेस जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा मीठा क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा मीठा फ्रूट आ रहा है, दैट इज़ मैंगो, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ्ट कर देंगे। अब बड बड का फॉर्मेशन हो गया और बड टी शेप के अंदर फिक्स हो गई, ठीक है, इसमें से निकल गई बड। और ये हमारा हो गए दोनों टाइप के प्लांट, लाइक दोनों सेम स्पीशीज़ में दोनों प्लांट आ जाएंगे, मीठा भी होगा और बड़ा भी होगा। ओके गाइस, देन कम्स टू द थर्ड पार्ट ऑफ द ग्राफिंग, दैट इज विप और टंग ग्राफिंग, ठीक है। विप और टंग ग्राफिंग में क्या होगा, आप इसके अंदर देख सकते हैं जिगजैग फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो साइकॉन होगा और नीचे वाला प्लांट दैट इज रूटेड इज स्टॉक, ठीक है। और वेज के अंदर वेज ग्राफ्टिंग में देखेंगे तो वेज ग्राफ्टिंग में फॉर्मेशन ऑफ वेज शेप्ड का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस है ना। इसको हम किसी दूसरे प्लांट में डाल देंगे, दिस पार्ट इज द साइकॉन एंड दिस पार्ट इज द दिस पार्ट इज द साइकॉन एंड दिस पार्ट इज द स्टॉक, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, इसको ग्राफ्ट कर देंगे और उसके बाद हमें थोड़े दिन बाद मिलेगा न्यू प्लांट, ये। फिर आएगी क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में बहुत सारे साइकॉन्स होते हैं। ये देखिए एक बड़ा सारा पेड़ और इसके ऊपर हमने साइकॉन लगाई है, देखिए ऐसे ऑब्लिकली काइंड ऑफ कट करके और हमने इसको ऐसे लगाया। तो ये है क्राउन ग्राफ्टिंग, इसमें मैनी साइकॉन्स आर ग्राफ्टेड एट अ फाइन इन द स्टॉक, ठीक है। तो आज हमने करा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये हम अच्छे से करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट आई विल बी अपलोडिंग इन जस्ट फ्यू डेज। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और प्लीज़ गाइस, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं लगी तो भी कमेंट करके बताओ कि मैं अपना क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ जिस आपको पसंद आए। ओके, सो बाय गाइस, हैव अ गुड डे।